Namaskar. Good afternoon to all the distinguished guests and the speakers present here today for 2 days national seminar on Sri Ram Sahitya. Now let us start with our first session wherein we all are very much enthusiastic to hear more from our expertise. We have with us Professor Rajneesh Mishra, who will be the chairperson, and Dr. Aparna Patil, who will be the speaker for this session. I request Ma'am Asha to please escort our guest on the dais. Professor Rajneesh Mishra is a distinguished academic with extensive expertise in both English and Sanskrit studies. Professor Mishra holds an MA in English from Patna University, as well as MA, MPhil and PhD in Linguistics from Jawaharlal Nehru University. Since 2001, he has been teaching at the prestigious School of Sanskrit and Indic Studies at JNU. His widely acclaimed works include Buddhist theory of meaning and literary analysis, and Shaiva philosophy and literary theory. He has also published numerous research papers and has contributed to various edited books. Professor Mishra has been recognized with the prestigious Okita Memorial Fellowship by the Japan Foundation and the Indian Council of Cultural Relations, and he was even offered the esteemed Heinrich Zimmer Chair by the University of Heidelberg. I welcome you, sir. The speaker for this session is Dr. Aparna Patil, ma'am. Dr. Patil completed her PhD from Pune University and has been a remarkable scholar in the field of Sanskrit and Indian logic. She has been honored with a gold medal from Shivaji University for standing first in Sanskrit, and further pursued Sanskrit Nyaya Shastra and Logic and Epistemology from Pune University. Dr. Patil has been recognized with numerous awards, including the Yashaswini Puraskar and Suvarna Kankan Puraskar, and currently serves as Secretary of Sri Subramanyam Vangmayi Parishad, a trust dedicated to traditional learning. Ma'am, I welcome you. Now I request our respected Principal Dr. Bhushan Bhave sir to present a token of love to the chairperson and to the speaker for this first session. Without further ado, I hand over the session to you, sir and ma'am. The floor is yours. Namaste Sharade Devi, Saraswati Matiprade, Vasatvam Mama Jivhagre, Sarva Vidya Pradabhava. Yontah Pravishya Mama Vachamimam Prasuptam, Sanjeevayatyakila Shakti Dharasvadhamna, Anyausha Hastacharana Shravanatvagadin, Pranan Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam. कूजन्तं राम रामेति आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। प्रभु राम जी का चरित्र गाना है तो पहले जिन्होंने गाया है उनको वंदन करना जरूरी है। इसीलिए मंगलाचरण में मैंने वाल्मीकि ऋषि जी का परम पुण्य स्मरण किया है। मैं इस संस्था को विद्या प्रबोधिनी संस्था और उनकी जो सहायक संस्था है उनको मन से अपने हृदय के अंतस्थल से बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि विषय ऐसा चुना है कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। अनेक सेमिनार्स में हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि प्रत्येक विषय पर
उल्टा सीधा विचार हो जाता है, खंडन मंडनात्मक हो जाता है, वेदों पर भी आघात हो जाते हैं। लेकिन राम ऐसा विषय है कि इसके प्रति सभी श्रद्धालु है। थोड़ा सा दोषोद्भावन करेंगे तो भी थोड़ा मन में ऐसा रहेगा कि अरे अपने श्रद्धेय विषय को हम थोड़ा धक्का लगा रहे, लेकिन इसका कुछ मंडन करेंगे, ये राम का दोष नहीं है। ऐसा अद्भुत विषय ये है और सभी हमारा मन जो है वो राम ने आकृष्ट किया है। तो इस राम का स्मरण करने का सौभाग्य और इनके विषय में चिंतन आप सबके सामने रखने का सौभाग्य हमें मिला, इसलिए मैं इन संस्थाओं को बहुत मन से धन्यवाद देती हूँ। अब जो है विषय मेरा वो फिलॉसॉफिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन रामायण। कोई नया विषय नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबको मालूम है। इतना राम हमारे जीवन में घुल मिल गया है कि कोई अलग मॉरल वैल्यू हो ही नहीं सकती, फिलॉसॉफिकल वैल्यू हो ही नाही सकती। मराठीत असं हे आहे की एखाद्या विषयाबद्दल जर तुच्छता दर्शवायची असेल, किसी विषय के प्रति अगर उपेक्षा दर्शानी है तो बोलते हैं उसमें कुछ राम नहीं है, कुछ भी राम नहीं। कोई अगर खाने का पदार्थ भी अच्छा नहीं हुआ तो ये क्या है, आज इसमें कुछ राम नहीं है, ऐसा बोलेंगे। इतना राम हमारे जीवन में घुल मिल गया है। एक काम मैं प्रोजेक्ट कर रही थी मेरे रिसर्च के समय, तो एक मीमांसा का शब्दकोश हम लोगों ने बनाया था। चिराउर जी श्रीराम शर्मा थे, उनके साथ मिलके एक शब्दकोश बनाया। तो मैं जब छोटी थी ना, तो कोई भी अगर उलट पुलट करके रख देती थी किताबें या कपड़े या ऐसे, तो मेरी माँ या दादी जी बोलते थे रामागडी नेमला आहे ते स्वच्छ करायला, क्लीन करने के लिए रामागडी आएगा। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि सभी गड़ियों का नाम रामा क्यों होता है। ऐसे उस बचपन की एक थी, सभी गड़ियों का नाम रामा क्यों है। गड़ी माने नौकर जो घर में काम करते हैं। तो मैं जब मुंबई कभी गई तो मेरे बुआ जी के घर में जो काम करने वाला आदमी आता था उसका नाम रामा ही था। तो ये रामागढ़ी क्यों नाम है। तो वो जब कोश मैंने किया मीमांसा का, ये मीमांसा शास्त्र ऐसा है कि जो हमारी यज्ञ संस्था के साथ डील करता है। वो यज्ञ के जो संदर्भ में जो वेद मंत्र आते हैं, जो विधि आते हैं, उनका अर्थ कैसा लगाना है, क्या करना है, विकल्प आता है तो क्या करना है, ये सब उसमें बहुत सारी बड़ी चर्चाएं हैं। उसमें एक जगह ऐसा है कि यज्ञ के बहुत साहित्य होता है ना, जैसे हविर द्रव्य है, ईंधन है, यज्ञ पात्र है, वनस्पतियां हैं, कुछ बहुत सारा होता है। तो वो लाने के लिए एक आदमी की योजना की होती है, उसको राम बोलते हैं। उसका काम क्या है, उस स्थल से वो लाके देना है, बाकी उसको कोई काम नहीं है वहाँ पर। तो वो एक नौकर जैसे अपने स्वामी के हाथ में कुछ सामान लाके देता है। वो ऐसा सामान लाके उसने, वो वनस्पति चाहिए, वो बोलेंगे राम वनस्पति मानय, राम हविर द्रव्य मानय, ऐसा होता है। तो उस पोस्ट का नाम है राम, इसीलिए वो वहाँ से आया। देखो वैदिक काल से भी राम हमारे जीवन में है, क्योंकि वैदिक काल के बाद रामायण बोलते हैं ना, लेकिन वो राम वैदिक काल से है। राम शब्द का अर्थ है रमयते इति रामः, न रमते इति रामः। देखो संस्कृत भाषा की ये बहुत क्या बोलेंगे वैशिष्ट्य है कि वो एक शब्द का इधर उधर करके अर्थ को बदल देते हैं। रमते इति रामः ऐसा बोलने जो खुद रममाण होता है। हाँ नहीं, यहाँ स्वयं रमते वो राम हो जाएगा। और जो रमयते, जो दूसरों का रंजन करता है, दूसरों के मन को रंजन करता है, आकृष्ट करता है, वो है राम। तो अभी तक वो काम चल रहा है वो राम जी का, अभी तक वो हमारे मन को उनके चरित्र में रममाण कर रहे हैं। तो ये अभी इसमें कुछ नया मैं कुछ बताने जाने वाली नहीं हूँ। थोड़ा सा मेरा न्यायशास्त्र का अभ्यास है, तो ये क्यों लिया विषय, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो वो जो न्यायशास्त्र है ना, कुसुमांजलि करके एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ईश्वर के प्रति, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वो पूरा ग्रंथ है, ईश्वर सिद्धि के लिए। तो अभी ईश्वर को क्या सिद्ध करना है
किसको सिद्ध किया जाता है, संदिग्ध जो वस्तु होती है ना उसके प्रति कुछ विचार वगैरह हो सकता है, जिसके प्रति अभी जैसा देखिए कि हम कहीं दूर से आ रहे तो हमें एक आकृति दिखती है, तो हमें क्या लगता है, या तो वहाँ पर एक खंबा है या फिर आदमी है। तो इस प्रकार संदिग्ध वस्तु है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बोल सकता है अरे नहीं नहीं वो हिल रहा है तो वो आदमी है, नहीं नहीं वो तो वैसा ही खड़ा है, वो खंबा है। ऐसे दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति तो कुछ है नहीं। अगर वो अप्रसिद्ध है तो अप्रसिद्ध वस्तु के लिए जिज्ञासा ही नहीं हो सकती, अगर प्रसिद्ध है तो उसके प्रति जिज्ञासा करके फ़ायदा क्या है, ऐसा है। तो उसका एक बड़ा अच्छा उत्तर उन्होंने दिया है कि न्याय चर्चेयमीशस्य, ये जो न्याय माने युक्ति, आर्ग्यूमेंट्स, ये जो न्याय की तर्क रूप चर्चा जो हम ईश्वर की कर रहे हैं वो क्या है, मनन व्यपदेश भाग। उस चर्चा को हम क्या बोलते हैं, मनन बोलते हैं। मनन व्यपदेश भाग, उपासनैव क्रियते, ये हम उपासना कर रहे हैं, हमें ईश्वर सिद्धि करने में कोई रस नहीं है। इस बहाने ईश्वर की मनन रूप उपासना हो जाएगी, क्योंकि हमें वेदों ने आज्ञा दी है आत्मा वा अरे श्रोतव्यः मंतव्यः। तो इसी कारण जो श्रवण के बाद, अभी श्रवण किया है ना, ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है, तो अभी उसका क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो यही इस जो चिंतन है मेरा, उसके प्रति मेरा यही भाव है कि इसी बहाने राम का मनन रूप अनुष्ठान हो जाएगा, मनन रूप उपासना हो जाएगी, तो हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है। अभी जो तत्वज्ञान के बारे में है, मैं कुछ प्रसंग या कुछ बहुत सारे ये नहीं बताऊंगी, मेरा जो चिंतन है वही आपके सामने रखूंगी, क्योंकि राम का जो कुल है ना, वो जैसा अभी बीज भाषण में आशुतोष जी ने बताया, इक्ष्वाकु कुल है, और ये अपने लिए नहीं अन्यों के लिए जीता है। तो ये क्यों है, तो ये उनके ये कुल इक्ष्वाकु कुल जो है वो सूर्य कुल है, सूर्य वंश है, और सूर्य का काम क्या है, ये उसके प्रकाश जितना ही स्वच्छ है। तो स्वाभाविक है कि उनके गुणसूत्रों में वही परोपकार का भाव है। तो ये फिलॉसॉफिकल ही कुल है, इसमें और कोई फिलॉसॉफिकल वैल्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं। खाली मैंने क्या किया कि जो राम की क्वालिटीज़ भूषण सर ने पहले ही अपने व्याख्यान में बता दी, तो जितनी नारद जी ने वाल्मीकि जी को पूछी थी, जितने गुण पूछे थे, उससे भी ज़्यादा गुणों का वर्णन नारद जी ने वाल्मीकि के प्रति किया कि ऐसा राजा राम है और वो अभी इस भूमि को शासित कर रहा है। तो रामायण क्या कहता है फिर, ये सब देख के आज के अपने लाइफ में इसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं, ये आज के काल में सिग्निफिकेंट हो सकता है कि नहीं, राम की फिलॉसफी और नैतिक वैल्यू। तो इस पर मैं थोड़ा सा चिंतन मैंने किया है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है ना, राम कितने फिलॉसॉफिकल है, और अभी तो पूरा मेरा भाषण ही आपने बता दिया सर, तो वो हम इसमें से कुछ ले सकते हैं कि नहीं। तो अभी देखिए, जहाँ से मैंने चिंतन शुरू किया है कि रामायण के जो लेखक है, वाल्मीकि रामायण का ही मैं मुख्य संदर्भ ले रही हूँ। रामायण के जो लेखक है वाल्मीकि महर्षि, उनका महर्षि होने से पहले का आयुष्य देखिए कैसा है, उनकी लाइफ देखिए, तो वो तो पूरी विरुद्ध है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई निषाद पुत्र थे या किरात पुत्र थे, किसी मृगया करने वालों के या आदिम समाज के नहीं थे, वो एक अच्छे कुल से थे वाल्मीकि। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप वाल्मीकि रामायण निकाल के रामायण महात्म्य पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, खुद वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है कि मैं कैसे कुल से था, एक अच्छे कुल से था, सत्पात्र विद्यावान कुल से था, लेकिन संगत बिगड़ गई, अच्छी नहीं रही, तो फिर मैंने पूरा अपना कुल धर्म सब छोड़ दिया, जो मेरे वर्णाश्रम के अनुसार मुझे व्यवहार करना चाहिए वो मैंने सब छोड़ दिया, और मैं क्या हो गया, इस जंगल में एक डाकू बन गया। तो मैं यहाँ डाकू बन गया। अब देखिए कि एक अच्छे कुल का आदमी बुरी संगत से डाकू बन गया, बुरा बन गया। अब बाद में फिर से क्या हुआ, फिर अच्छी संगत मिली उनको,
नारद जी आए और उन्होंने बता दिया कि आपने ये करना ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। अब फिर क्या किया उन्होंने? प्रभु राम जी की तपश्चर्या की और खुद को बदल दिया। तो ये है कि अगर मनुष्य विवेकशीलता से अपने आप को अगर बदलना चाहता है तो वो पूरा बदल सकता है। ये राम का तत्वज्ञान है। अभी जो हमारे तत्वज्ञानों पर आक्षेप है कि वो कर्म संन्यास बोलते हैं या फिर प्रारब्ध बोलते हैं, जैसा भगवान ने निश्चित किया है वही होने वाला है, तो ये हमारे जीवन में कर्म शिथिलता को लाता है। इस आक्षेप का निराकरण इस चरित्र से होता है कि नहीं, मनुष्य अगर प्रयत्न कर सकता है तो वो जरूर अपने आप को बदल सकता है। वही आगे सभी प्राकृत साहित्यों में या संस्कृत साहित्यों में चिन्हित हुआ है, जैसे नर करणी करे तो नर का नारायण बने, या फिर हमारे समर्थ रामदास जी कहते हैं केल्याने होता है रे आधी केले जी पाहिजे यत्न तो देव जाना। तो ये जो शुरुआत है इसी चरित्र से, मतलब लेखक के चरित्र से ही हो जाती है। तो ये मूल है कि मनुष्य अपने आप को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? विचारों से बदल सकता है। जब विचार बदलते हैं तब अपने आप आचार बदल जाता है, और आचार जब बदल जाता है तो मूलतः सब पूरा उसमें बदल हो सकता है। और जो शास्त्रों की पद्धति है उसमें उपक्रम और उपसंहार के बीच में अभ्यास आता है। बार बार ऐसे बदले हुए व्यक्तित्वों का हमें यहाँ पर जिक्र मिलेगा। केवल राम के बारे में ही नहीं बोलेंगे, बहुत सारी कथाएं उपकथाएं उस पर आई है। तो ये प्रधान है। अभी राम जी के प्रति, राम जी के जो गुण बताए गए हैं कि वो एक आदर्श अच्छे राजा के गुण हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो मैं आपको सच में बताती हूँ कि अच्छा अद्वैत वेदांत का अध्ययन किए बिना वो गुण हम अपने में उतार नहीं सकते। जो सभी प्रजा के प्रति करुणामय होना चाहिए, किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं, जित क्रोध हो जितेंद्रिय, ये सब जो गुण हैं वो अच्छी फिलॉसफी का केवल अध्ययन नहीं, उसका अपने जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए, तो भी उसके बाद वो अच्छा राजा बन सकता है। और ये जो अच्छे राजा के गुण यहाँ पर दिए हैं उन्होंने रामायण में, वाल्मीकि जी ने, उसी का रिफ्लेक्शन आगे जाके कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में हुआ है। वो कौटिल्य जी अपने अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, उसमें वो बताते हैं कि धार्मिकम पालनपरम सम्यक परपुरंजयम राजानम अभिमन्यन्ते प्रजापतिमिव प्रजाः। जो राजा धार्मिक है, जो राजा धार्मिक है, प्रजा का पालन करने में तत्पर है, और दूसरों का परपुरंजयम, सम्यक परपुरंजयम, दूसरों का जो शहर है, राज्य है, वो किसी अच्छे योद्धा के समान जो जीतता है, परपुरंजयम, पुरम जयति इति पुरंजयः, पर माने दूसरे का, ऐसे राजा को प्रजा मानती है। तो ये सभी गुण कहाँ दिखने को मिलते हैं हमें? आदर्श राजा के हिसाब से वही है। और फिर आगे बोलते हैं कि राजा अस्य जगतः हेतुः वृद्धेः वृद्धाभिसम्मतः नयनानंदजननः शशांक इव तोयधेः। ये जो राजा है ये जगत के हेतु का कारण है, वृद्धि है तो जगतः वृद्धेः हेतुः, संपूर्ण जगत की वृद्धि का कारण है। और कैसा है? वृद्धाभिसम्मितः, जो बड़े बूढ़ों सबको अभिसम्मत है, मान्य है, जिसके प्रति उनके मन में भी आदर है। नयनानंद जननः, सभी लोगों के नयन को आनंद देने वाला है। और शशांक इव तोयधे, जैसे समुद्र को चंद्रमा आनंद देता है, वैसे सभी जगत को जिसको देख के आनंद हो जाता है, वैसा राजा होना चाहिए। ये सभी जो लिखे हुए सूत्र हैं वो सभी हमें राम के जीवन में मिलते हैं। अभी इस पर जो एक विचार मेरा है कि जो नीतिमत्ता जिसको हम बोलते हैं और जिसको तत्वज्ञान बोलते हैं, वो और कुछ नहीं, एक ही कॉइन के दो साइड्स है। अगर आप नीतिमान हो तो आप फिलोसॉफिकल व्यवहार कर सकते हो,
और जब आपको फिलॉसफी अच्छे से समझ में आती है तो आप अपने आप नीतिमान बन जाते हो। जैसे देखिए कि अच्छा, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी को दुख हो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या बताते हैं, हमारे बचपन में वो हमारे दादाजी नाना जी बताते थे, देखो तुम उसको तकलीफ़ दे रही हो, तुम उसको दुख दे रही हो, वही दुख अगर तुम्हें वो दे देगा तो तुम कैसे फील करोगी, कैसा लगेगा तुम्हें। तो यही है आत्मवत् सर्वभूतेषु। खुद के जैसा दूसरों को देखो, तभी पता चलेगा कि उसके दुख का कितना उपद्रव होता है, कितनी तीक्ष्णता है, तभी पता चलेगा। तो ये सब राम ने अपने जीवन में लिया है और हमें पढ़ा रहे। ये क्यों किया उन्होंने, राम ने? जब हमारा अगर विश्वास है, श्रद्धा है कि राम तो भगवान विष्णु के अवतार थे, वो तो सर्वज्ञ थे, उनको तो सब पता था, तो फिर क्यों ये सब किया? तो इसका उत्तर हमें गीता में मिलता है कि लोक संग्रह के लिए किया। जिस धर्म में वो है, जिस आयु में वो है, जिस आश्रम में वो है, उसी आश्रम का अत्यंत कठोर पालन उन्होंने किया है। और जिस तरह से राजा वो वन में गए, फिर सीता जी का वियोग हुआ, सीता जी को भगा लिया गया, वहाँ पर उन्होंने शोक भी किया। तो एक पति का धर्म कैसे होना चाहिए, उसको दुख होना चाहिए कि अपनी पत्नी का हरण किया। तो वो दाम्पत्य जीवन की मर्यादा भी वहाँ सिखाते हैं, बंधु जीवन की मर्यादा भी सिखाते हैं। ये सब राम ने खुद आचरण किया, जो मराठी में है आधी केले मग सांगितले, खुद आचरण किया और फिर हमारे सामने वो आदर्श रखा कि ये मूल्यों का अगर तुम जीवन में उपयोग करोगे तुम लोग सुखी हो जाओगे। अभी देखिए कि रामायण में एक कथा आई है। हाँ, रामायण में एक कथा आई, एक नीति के प्रति, स्त्री के प्रति कैसा दृष्टिकोण था रामायण में। तो हमेशा एक आक्षेप बड़ा लिया जाता है वहाँ पर, कि अहिल्या की कथा पर बड़ा आक्षेप लिया जाता है कि गौतम महर्षि की पत्नी, अब इसी संदर्भ में बताऊंगी मैं कि न्यायशास्त्र का और रामायण का भी क्या संबंध है। गौतम महर्षि जी की पत्नी जो अहिल्या है, उनका चारित्र्य हनन इंद्र ने किया, क्योंकि गौतम ऋषि को उसे पराभूत करना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब देखिए ये भी एक हमें सिखाता है कि अगर पुरुष को पराभूत करना है तो उसकी स्त्री का चारित्र्य हनन करना चाहिए। तो गौतम जी ने अहिल्या का चारित्र्य हनन किया। अब ये कैसे किया, तो कथाएं हमें बताती है कि गौतम जी का रूप धारण किया इंद्र ने, और इस तरह से अहिल्या उनको नहीं जान पाई और उसने सोचा कि वो गौतम ही है, तो उन्होंने उनके साथ पति जैसा व्यवहार किया। ये हमें कथाएं बताती है। लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में क्या आया है कि ये जो गौतम जी थे और ये अहल्या थी, ये कोई सामान्य दाम्पत्य नहीं था, ये बहुत तपश्चर्या करने वाले दाम्पत्य थे। और ऐसा होते हुए भी जब एक दिन गौतम महर्षि कुछ यज्ञीय समिधा या साहित्य लाने के लिए बाहर वन में गए, उसके बाद जब गौतम ऋषि का रूप लेकर इंद्र वहाँ आ गए उनकी झोपड़ी में, तो अहिल्या ने उनको पहचाना था। वो मैं नहीं लिखती हूँ, रामायण में लिखा है, मैं बता दूंगी अभी आपको, कि उन्होंने जाना था कि ये इंद्र है, तो उनको अपने सौंदर्य के प्रति गर्व हुआ कि मेरे सौंदर्य का प्रभाव इतना है कि देवों का राजा भी मेरा आशिक हो गया, और फिर उन्होंने गलत व्यवहार किया। अब गलत व्यवहार किया उन्होंने, हाँ, उसके बाद क्या बताया जाता है हमें कि वो शिला बन गई, है ना, शिला बन गई। लेकिन वो शिला नहीं बनी। वो उसने बताया इंद्र को कि अभी हमारा काम हो गया है ना, तो तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, कहीं मेरे पति आएंगे तो हम पर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि वो दरवाजे में दोनों एक दूसरे को दिखाई दिए, गौतम महर्षि और इंद्र। अब वो तो त्रिकालज्ञ थे गौतम महर्षि, उन्होंने उनको देखा और उनको तुरंत पता चला यहाँ पर क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, देखिए अभी शासन कैसे किया है। देखिए, उन्होंने इंद्र को बोला तुम निष्फल हो जाओगे, तुम्हारी कोई संत, मतलब तुम नपुंसक हो जाओगे, ऐसा उसको शाप दे दिया इंद्र को, और तुरंत वो शाप लागू हो गया इंद्र पर। और अहिल्या को क्या बताया, देखिए नहीं, शैली नहीं, उन्होंने कहा इह शप्त्वा च वै शक्रम भार्यामपि शप्तवान।
इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमे अस्मिन निवसिष्यसि। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम शिला बन के खड़ी रहोगी। वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। बाद में जैसा आपने कहा कि अपने अपने इसके अनुसार बदल होते जाते हैं लेखक, क्योंकि कवि तो स्वतंत्र करता होता है, वो कुछ भी कर सकता है अपनी क्या अपने साहित्य सृष्टि में कुछ भी निर्माण कर सकता है वो। भगवान मतलब जो देखे कवि वो न देखे रवि, ऐसा भी कहा जाता है ना। तो वो उसका स्वातंत्र्य है, पोएटिक वही है उनको, कोई हाँ लिबर्टी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मूल स्रोत है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है कि शिला बन गई, शिला बन गई क्यों। और क्या कहा, यदा तु एतद्वनं घोरम रामो दशरथात्मजः हाँ आगच्छति तदानीं भवति पूता भविष्यति। फिर क्या करेगी तू, तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्सकाशम मुदा युक्ता स्वं वपुर धारयिष्यसि। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। अभी जो अपराध तुमने किया है उस अपराध का दंड तुम्हें तब तक मिलेगा, तब तक तुम तपश्चर्या करती रहो, सभी लोगों को तुम दिखाई नहीं दोगी। क्योंकि क्या होगा देखिए कि उसमें भी उन्होंने स्त्री के सम्मान की रक्षा की है। अगर लोग उसको देखते तपश्चर्या करते हुए, अवश्य उसको टॉन्टिंग करते, आते जाते बोलते अरे ये ना ये ऐसी है, ये ना दुश्शीला है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उसे क्या बताया, भस्मशायिनी, तुम अपने आप को कहीं पर छुपा दो और तपश्चर्या करती रहो। कब तक करनी है, जब तक राम वहाँ आएंगे, तुम उनका आतिथ्य करो, उसके बाद तुम पवित्र हो जाओगी और फिर मेरे साथ रहोगी। ऐसा नहीं कहा कि तुम चलो इंद्र के साथ रहो। ये दृष्टिकोण है स्त्री के प्रति रामायण में देखने का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नैतिक वैल्यू है। और ये ऐसा ही होता है कि अपराध किसी से भी हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित्त होता है, उसके बाद अहिल्या का स्थान हमारे जीवन में क्या है आपको पता है। सभी 5 पतिव्रताओं के प्रथम स्थान पर अहिल्या है, अहिल्या द्रौपदी तारा, उसके बाद द्रौपदी आती है, लेकिन पहले स्थान पर अहल्या है। ये राम का महात्म्य है। कितना भी पतित हो उसको पवित्र करने का सामर्थ्य, मतलब वो धार्मिक रीति से नहीं बोल रही हूँ मैं, वस्तुतः उनका ये सामर्थ्य है कि वो राजा है, उन्होंने बताया होगा कि अभी इसको बहुत पश्चाताप हो गया है, आप इनका स्वीकार करो। और ये वही गौतम ऋषि है, मिथिला में रहते थे, मिथिला के पास वाले आश्रम में रहते थे, और इन्होंने ही न्यायशास्त्र की रचना की है। न्याय के जो सूत्र है न्यायशास्त्र के, इसके रचयिता ये ही गौतम महर्षि है। तो ये रामायण के जो कुछ मेरे सामने आए मूल्य वो है। और दूसरा एक आक्षेप है उस पर, मतलब वो अभी मैं यहाँ आने के पहले थोड़ी देर मुझे किसी ने पूछा कि उत्तर रामचरित में, अब सीता जी का तो अग्निशुद्धि हो गई थी, सब हो गया था, फिर भी किसी एक रजक के कारण से उनको अपना फिर से शुद्धि प्रमाण देना पड़ा सीता जी को। ये क्यों हो गया? तो इसका एक ये है उत्तर जो मैंने चिंतन करके, अभी मैं आप जैसे विदुषियों के विद्वानों के सामने रख रही हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, आप बताइए मुझे, मतलब तर्कसंगत है कि नहीं, बताइए मुझे। एक तो ऐसी बात है ना वहाँ पर कि आज के जो प्रमाण या परिमाण है वो हम रामायण में नहीं लगा सकते हैं। उनके जो आदर्श है, उनकी जो व्यवहार की रीति है वो सब अलग है। अभी हम उनका एक दशांश भी उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, मतलब उनका व्यवहार में नहीं ला सकते हैं हम, इतना वो सब कठिन और जटिल है। तो सीता जी के अभी क्या है कि सीता जी कौन है, वो राम की शक्ति है, और रामावतार का उपसंहार का समय आ गया है। तो पहले शक्ति को जाना चाहिए, बाद में प्रभु रामचंद्र जाएंगे। तो उसको जाने के लिए कुछ कारण चाहिए। तो आप बोलोगे कुछ अच्छा कारण हो सकता था, लेकिन राम केवल पति नहीं है, वो राजा भी है। और कैसे राजा है, वो सम्राट राजा है।
और सम्राट राजा हमेशा प्रजा का रंजन करता है। एक भी कोई आक्षेप प्रजा के मन में आता है तो वो उसका समाधान उसको करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये राजनीतियाँ बोलती है। हर एक जो राजकौटिल्य से लेकर मतलब अथर्ववेद से हमारी राजनीति अगर शुरू होती है, ऐसा हम सोचेंगे तो वो राजनीतियाँ बोलती है कि हाँ बस लास्ट पॉइंट है राजनीतियाँ बोलती है कि हमेशा क्या बोलते हैं, भोग रहित स्वामी राजा। जो राजा है ना वो भोग रहित स्वामी है, मतलब उसके पास पूरा कर आता है, टैक्सेस आते हैं, वो सब पैसा उसके अपने उपभोग के लिए नहीं है, वो प्रजा के समाधान के लिए है। तो उसका चारित्र्य भी ऐसा होना चाहिए कि प्रजा एक भी उंगली नहीं दिखाए, क्योंकि एक भी अगर मन में विरुद्ध विचार आता है तो वो राज्य नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता है। और इसका हमें अनुभव हम लेते हैं, पग पग पर अनुभव लेते हैं। तो उस आदर्श के वो राजा थे प्रभु रामचंद्र, और उन्हें एक पता है, मतलब वो दाम्पत्य है ना, रामचंद्र और सीता ये दाम्पत्य है। और दाम्पत्य में क्या है उनका, वो अभेद संबंध है, तादात्म्य संबंध है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को ही अपने से दूर कर रहे हैं, सीता को दूर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप को ही, क्योंकि एक साइड से कुछ नहीं चलता है, दोनों होना चाहिए साथ में। तो वो अपने आप को दूर कर रहे, अपने ही एक भाग को दूर कर रहे, फिर दिखाएंगे वो कि देखिए आपने जिस पर आक्षेप किया वो इतनी सती साध्वी है, उसके बिना ये राज्य नहीं चल सकता है, ये सब विश्व नहीं चल सकता है, वो मेरी शक्ति है। ये प्रजा को दिखाने के लिए ये सीता पर फिर से आक्षेप आ गया, फिर से सीता जी को अपनी शुद्धि के लिए बताना पड़ा। और प्रभु रामचंद्र जी ने सीता का उस समय त्याग नहीं किया है, सीता ने प्रभु रामचंद्र जी को छोड़ा है उस समय। उन्होंने बताया कि अभी मैं थक गई हूँ आपके आदर्श राज्यवाद से, तो अभी मैं अपना खुद का स्वातंत्र्य चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो ये सब क्या है, ये सीता ने मन से त्याग नहीं किया है, कि नहीं तो वो ऐसा नहीं बोलती कि अगले 100 जन्म में आप ही मेरे पति रहो, लेकिन वो इतना बोलती है कि अगले जन्म में मुझे कृपया इतने दुख मत देना। तो अगले जन्म में फिर रुक्मिणी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा है श्री कृष्ण जी का, कभी भी उनका वियोग नहीं हुआ। तो ये सब है कि वस्तुतः रामायण जो है ना, मतलब रामायण का जो भाग एक महत्वपूर्ण है, रावण का वध, वो अपनी पत्नी के सम्मान रक्षण के लिए ही राम ने किया है। अगर सीता का अपहरण सीता के निमित्त से बाकी सभी लोगों को सुरक्षित किया, लेकिन अगर सीता का अपहरण नहीं होता तो शायद इतनी जल्दी रावण का वध नहीं होता। तो अपनी पत्नी का सम्मान रखने के लिए जिसने उसको तकलीफ़ दी, जिसने उसका मान भंजन किया, उसका पूरा समूल नाश करके जो अच्छा राजा है, उसी वंश का है, अच्छा राजा है, लेकिन जो सम्मान करना, सभी का सम्मान करना चाहता है, उसको उन्होंने वहाँ पर प्रस्थापित किया। तो ये उनका स्त्री के प्रति मॉरल वैल्यू हो गई। और जो सबसे बड़ा राम जी का गुण है वो विवेकशीलता, जिस पर आशुतोष जी ने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला कि सब राज्य लंका का जीतने के बाद उन्होंने किसी अपने अनुचर को, या लक्ष्मण ने तो कहा ही था कि हम यहीं पर रहते हैं अभी लंका में, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, ये अभी हमारी जननी जन्मभूमि, वहाँ पर जाना चाहिए। और ये जो राज्य है वो विभीषण को उन्होंने वापस दे दिया। ये है विवेकशीलता का उनका उदाहरण, वैराग्य का उदाहरण है। तो राजा वैराग्यशील भी होना चाहिए, विवेकशील भी होना चाहिए, और वो ऐसे है, ऐसा उनके चरित्र में लिखा हुआ है। मैं समय के कारण इस पर वो सब नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन वाल्मीकि जी के शब्द इतने मधुर है, इतने मधुर है कि हमें उनका अर्थ समझने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरा चिंतन आप सभी विद्वानों के सामने रखने का अवसर भूषण जी ने मुझे दे दिया, और आप सब ने बड़े धैर्य से आपने ये सब मेरा कथन सुन लिया, इसलिए मैं आपके ऋण निर्देश करती हूँ और समाप्त करती हूँ। Thank you, ma'am, for such an enlightening session. Now I hand over the session to Professor Rajneesh Mishra, sir.
ओम वागरथाविव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रोफेसर भूषण भावे जी का, जिनके आमंत्रण और आग्रह पर कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी और उनके उत्साहवर्धन से मैं यहाँ उपस्थित हो पाया। और इस सभागार में तो मैं किनका नाम लूँ, सब इतने बड़े विद्वज्जन बैठे हैं और इन सब के बीच कुछ चर्चा करना कितना सार्थक और सारगर्भित होगा, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी सुन रहा था जो सुबह से ही जो चर्चा चल रही है उसको भी, और इस सत्र की जो वक्ता रही डॉक्टर अपर्णा पाटिल जी, आपने फिलॉसफिकल एंड मोरल वैल्यूज़ को लेकर के राम के संदर्भ में चर्चा की। तो सर्वप्रथम मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं, और मैं जानता हूं कि समय का अभाव है, भोजन भी इसके उपरांत है। मैं शत्रुता नहीं मोल लेना चाहता आपसे, मेरा प्रथम आगमन है गोवा में, इसलिए मित्रवत रहें, आपका सौहार्द बना रहे। तो बहुत संक्षेप में अपनी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सरल, सहज और सुबोध शैली में, और विशेष रूप से जो अनुभव से प्रमाणित होता है, इस भाव से, इस शैली में आपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। साहित्य कहते ही इसी कारण से है कि उसमें सहित का भाव है। हम शायद रामायण या राम कथा से संबंधित जो भी साहित्य है उसमें शायद हम बहुत ज़्यादा आदर्श और मूल्य और स्वाभाविक की भी बात है, बहुत ज़्यादा खोजते हैं। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वह साहित्य भी है और उच्च कोटि का साहित्य है। ऐसा साहित्य जो आगे के कवियों के लिए तो आदर्श रहा है, काव्य बीज सनातनम उसको कहा गया, इस तरह का भी है। विश्व में रामायण और महाभारत को छोड़ करके कोई ऐसी दूसरी रचना आपको दिखेगी नहीं। संपूर्ण विश्व साहित्य के संदर्भ में ये बात कहना चाहता हूँ, जिसकी इतनी व्यापक लोक स्वीकृति हो, देश और काल में जो इतना व्यापक रूप से विद्यमान हो, कोई ऐसी दूसरी कृति नहीं रामायण और महाभारत को छोड़ करके। तो एक तो उसका जो साहित्यिक पक्ष है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें होंगी, पुरुषार्थ चतुष्टय भी होगा, चतुर्दश विद्याएं भी होंगी और चतुष्षष्टि कलाएं भी होंगी, जिनकी चर्चा राजशेखर ने बड़े विस्तार से अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में की है। और वो तो कुछ आगे ही बढ़ करके कहते हैं कि 6 वेदांग हैं तो सप्तम वेदांग काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र को मानना चाहिए, अन्यथा वेद को हम पढ़ेंगे कैसे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे, द्वा सुपर्णा से युजा सिखाया जैसे मंत्र कैसे व्याख्यायित होंगे, क्या उपलब्ध वेदांग इसकी व्याख्या करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से भी बातें होती रही हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बीज वक्तव्य के रूप में हमने इतना ओजस्वी और सारगर्भित वक्तव्य सुना है, उसकी अनुगूंज मैं समझता हूँ कि पूरे सेमिनार में, संगोष्ठी में व्याप्त रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। मैं कई ऐसे सभाओं में या ऐसे चर्चा में भाग लेता रहा जिसमें ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स होता है, विश्वविद्यालय से जुड़े रहने का ये सब भी तो राम कथा पर या रामायण पर चर्चा चल रही थी, तो एक विदुषी ने, जो प्रतिभागी रही होंगी, उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानती। अब बड़ा असहज वक्तव्य था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, राम को मानना आवश्यक नहीं, राम को जानना आवश्यक है ना। तो यह बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसी ही कई बातें ये आजकल की चीज़ों में, आजकल के विमर्शों में सुनने को मिलती हैं। दूसरा ये भी कहा गया, ये नारीवादी विमर्श के पक्ष से आता है। ये सब हम नए नए ढंग से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं ना आजकल, औपनिवेशिक काल के बाद। तो उन्होंने कहा कि कालिदास की सारी रचनाएं विद्योत्तमा की हैं, क्योंकि वो विदुषी थी, है ना। और चूँकि पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए सारा श्रेय कालिदास को चला गया। अब ये भी बड़ा मतलब अर्थपूर्ण है, निरर्थक नहीं है। अब इसका उत्तर कैसे दिया जाए। मैंने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी भी सभ्य व्यक्ति का किसी की गृहस्थी में ताक झांक करना क्या सभ्य आचरण माना जाएगा।
ये कालिदास और विद्योत्मा के घर का मामला है, वहीं रहने दीजिए। तो और क्या उत्तर दे सकते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जेएनयू वामपंथ का केंद्र माना जाता है, आप जानते हैं। लेकिन आश्चर्य आपको ये, मुझे भी हुआ और आपको भी होगा ये जान करके कि एक बड़ा द्वैतमूलक आचरण होता है इनका। घर में ये सनातनी होते हैं और दरवाज़ा जैसे ही पार करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने कई ऐसे मार्क्सवादी विद्वानों को रामायण का सीरियल मंत्रमुग्ध होकर के देखते देखा है। और मैं मिलने गया था तो मुझे कहा कि अभी 10 मिनट बैठिए, ये सीरियल चल रहा है, ख़त्म होने पर मिलूँगा। तब मुझे और आश्वस्ति हुई कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा हुआ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा, है ना? ये सब व्यथा कथा आप ही से चर्चा करनी सार्थक भी होगी। एक निबंध था ए.के. रामानुजन का 300 रामायणस, और उस पर बड़ा विवाद हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में था, फिर उसको हटा भी दिया गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। कारण क्या है, मैं उसकी तरफ, उसमें क्या लिखा है अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बहुत अनावश्यक भी होगा, लेकिन मैं शीर्षक पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या रामायण 300 हैं? एक ही है, एक है सिर्फ वाल्मीकि का। वाल्मीकि की रचना को रामायण कहते हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण कहने की भी आवश्यकता नहीं। रामायण बाकी जिन लोगों ने लिखा है वो बाल रामायण, अद्भुत रामायण, जो करना है करते रहते, है ना, या रामायण मंजरी आदि ये सब। तो कुछ, या इतना भी यदि रामायण कहना भी हो तो आजकल लोग कहते हैं तुलसी की रामायण, तो नाम जोड़ना पड़ता है। यदि रामायण पर कोई विशेषण न लगाया जाए आगे तो वो वाल्मीकि की ही रचना मानी जाती है। तो 300 रामायण, ये तो भ्रामक शीर्षक है। राम कथा 300 क्या 3000 हो सकती है, अनंत हो सकती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना। तो ये सारी बातें ध्यान दे करके हमें विचारने की आवश्यकता है। मैं एक दो बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ जो मैं कहना चाहता था। आपकी अनुमति भी चाहिए, चूँकि आप बोल चुकी हैं, इसलिए कि एक तो राम के लिए या रामायण में सत्य, धर्म और रीत पृथक पृथक नहीं है ना, एकान्विति है इन सब की। और एक बड़ी बात जो इसके साहित्यिक पक्ष पर मैं उसको चरितार्थ करना चाहता हूँ, जो अथर्ववेद आदि में चर्चा आती रही है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीयति। तो रामायण की उपस्थिति आज भी और जिस व्यापक रूप में है वो तो इसी से चरितार्थ हो जाती। ये देवता का काव्य है ना, जैसे सृष्टि देवता का काव्य है। वाल्मीकि, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह किसी साहित्यिक रचना का निकष भी है, यह वाक्य, है ना। उसको परखने का यदि हो तो ये देखना चाहिए कि कृति कैसी व्यापक या कालजयी रही है। और रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए कहा गया कि धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, अयोध्या कांड में जैसे ये चर्चा आ रही है। तो धर्म, सत्य, ये सब एक जैसे हैं। हमारे यहाँ पृथक करके इनको देखा भी नहीं गया कभी। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत हमारे मेटा नैरेटिव्स हैं। मेटा नैरेटिव्स सभ्यता संस्कृति मूलक आख्यान है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा आघात इन्हीं पर होता भी है। दुर्व्याख्या करके या अनास्था उत्पन्न करके या एक माइथोलॉजी, हालांकि अब वेस्ट माइथोलॉजी को एक भिन्न अर्थ में समझना शुरू कर चुका है रोला बार्थ के बाद से, लेकिन तब भी उसको पूरा काल्पनिक या कल्पित कथानक बता करके भी इसको बताया जाता रहा है। इसलिए क्योंकि यह वेद का उपब्रह्मण है, इन दोनों में ही वेदार्थ का ही उपब्रह्मण है। और इसकी व्याप्ति चूँकि इतनी ज़्यादा है, अधिक है, कि यदि इन पर आघात किया जाए और इनको निर्मूल कर दिया जाए तो और कुछ करने को बचता नहीं है ना। यह इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उनके वो भी इसका महत्व पहचान रहे हैं जो प्रतिरोधी हैं, और इसलिए बार बार इस पर आघात होता रहता है, और इसके प्रति हमें सचेत भी रहना चाहिए। यह त्रेता का महाआख्यान है, जैसे द्वापर का महाआख्यान महाभारत, है ना। इस तरह से जिसको हम इतिहास कहते हैं, इतिहास अपने यहाँ
मैं कई बार ये चर्चा कर चुका हूँ आप विद्वज्जनों से कि जो विधाओं के नाम हैं ना, अभिधान जो उनके हैं, नॉमेनक्लेचर, वो अनुवाद के योग्य नहीं होते हैं। जैसे ही अनुवाद करेंगे उनका पूरा परिदृश्य, प्रयोजन, प्रक्रिया सब बदल जाती है, और वही इतिहास और हिस्ट्री के साथ भी है। तो इतिहास जिसको हम कहते रहे हैं वह क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो इसको हम इतिहास कहते रहे हैं। हमारे लिए इतिहास में वह एक ऐसा राजा भी जिसका राज्य बहुत विस्तृत ना हो, बहुत कम समय के लिए भी शासन उसने किया हो, लेकिन उसके राज्य में पुरुषार्थ की अभिवृद्धि हुई हो, पुरुषार्थ का संरक्षण हुआ हो, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इतिहास को एक अतीत का विषय मान करके नहीं चलते, वह हमारा जीवंत वर्तमान भी है, हम उससे प्रेरणा भी लेते रहते हैं। और जब इस इतिहास को काव्य में परिणत कर दिया कवि प्रतिभा ने, तब तो वह देश काल या भूतकाल भविष्यत्काल इसमें बंधा नहीं रह गया, वह तो कालजयी रचना हो गई। इसलिए आज भी इनको हम अपने विविध संदर्भों में लेकर के चलते हैं। यह आदि काव्य है, वेद सम्मत है, और मैं एक पत्र में अलग लिख चुका हूँ कि यह आदि काव्य शास्त्र भी है। इस पर भी आगे विचार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें उपमा का प्रयोग हुआ है, छंद का प्रयोग है, इसके कारण मैं नहीं कह रहा हूँ इसके आदि काव्य शास्त्र। लेकिन प्रथम 4 सर्गों को, बालकांड के प्रथम 4 सर्गों को ही देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे एक इतिहास जो उन्होंने नारद मुनि से सुना है वह कैसे काव्य में परिणत होता है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से हम कहें तो एक वाक्य में यह कहेंगे कि शोक नामक स्थायी भाव का करुण रस में परिणति या परिपाक है ना। ये पूरा का पूरा रामायण हमारे सम्मुख आता है। इसी प्रकार से आर्ष काव्य है, कवि और ऋषि दोनों इसमें समाहित हैं। और आर्ष हम किसको कह रहे हैं? दृष्टम साम, जिसको कवि ने केवल ये कवि कल्पना प्रसूत नहीं, चूँकि ये पूर्व वृत्त है इसलिए कवि कल्पना प्रसूत नहीं कहेंगे, लेकिन उसको काव्य में परिणत करने का श्रेय उसकी प्रतिभा को जाता है, जिसके लिए अभिनव गुप्त कहते हैं अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा ध्वन्यालोक लोचन में। अपूर्व का निर्माण करना, तो वह इतिहास कैसे काव्य में परिणत होता है और उसकी व्याप्ति कितनी हो जाती है, यह सब हमें इसी से सीखना है। दूसरा एक पक्ष है एपिक कल्चर का। एपिक कल्चर जिसकी चर्चा आप सुबह कर भी रहे थे। जिस ग्रंथ ने बृहत्तर भारत की रचना की है उसमें रामायण और महाभारत का बहुत बड़ा योगदान है ना। और इसकी व्याप्ति आप देख सकते हैं कि कहाँ तक। जो 16 गुणों की चर्चा आरंभ में वाल्मीकि करते हैं, देखिए एक ऐसा ऋषि जो तपस्या में है, अपने तपोवन में रहता है, अरण्य प्रदेश में वास करता है, लेकिन उसकी चिंता देखिए कैसी है। को नस्मिन सांप्रतम लोके, है ना। अपने देश काल के प्रति कैसी संवेदना है, कितना जुड़ाव है। मैं ये बात यहाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अपने देश काल की उपेक्षा करके कोई कृति कालजयी नहीं होती, है ना। तो इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो चाहते हैं कि इन गुणों से समन्वित हमारा महानायक होना चाहिए। तो एक प्रकार से यह महानायक का अनुसंधान भी है, और ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसको कर्तव्य का महाकाव्य कहते हैं। धर्म है, कर्तव्य है, इसका महाकाव्य कहते हैं। दूसरी तरफ महाभारत है, उसमें अधिकार की चर्चा ज़्यादा है। लेकिन भारतीय संस्कृति या समाज समुदाय हमारा धर्म को लेकर के चलता है, कर्तव्य को लेकर चलता है प्रारंभिक रूप से, न कि अधिकार को। तो वह संतुलन महाभारतकार ने भगवत गीता या ऐसी और जो 15 गीताएं हैं या नीतियां हैं, उपदेश हैं शांति पर्व में, उन सब के माध्यम से अधिकार और कर्तव्य का एक संतुलन वहाँ उन्होंने खोजा है। तो ये सारी बातें हैं। और इसमें केवल एक अंतिम बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं, सूची बताने से कोई लाभ नहीं, आप सभी परिचित हैं कि शताधिक काव्य संस्कृत में और उससे भी अधिक यदि नाटक और खंड काव्य चंपू आदि को जोड़ लें तो ये सारी रचनाएं संस्कृत में उपलब्ध हैं। मतलब कहने का ये है कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय राममय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि
अपने समय को पहचानना, जिस संदर्भ में ये सारी राम कथाएँ अलग अलग देश काल में कही गई हैं। तुलसी के संदर्भ में एक बात आती है कि, और तुलसी इसलिए मैं उनको उद्धृत कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि उन पर एक बड़ी प्रसिद्ध रचना निराला जी की भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो पढ़ना चाहिए सबको। निराला जैसा, जिनको क्रांतिकारी और इतना बड़ा कवि हम मानते हैं, देखिए क्या लिखते हैं तुलसीदास के बारे में। तो मैं वो प्रसंग दूसरा है, इसलिए मैं तुलसी, चूँकि वो रचना केवल तुलसीदास पर ही आधारित है, और क्यों तुलसी महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान उनको, तुलसीदास जी को कृष्ण मंदिर में एक बार ले जाया गया, या वो गए वैसे भी, और वहाँ कृष्ण की त्रिभंगी मूर्ति जो देखी उन्होंने, और एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, और वो प्रसिद्ध दोहा है, का बरनौ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बाण लो हाथ। यह तुलसी का देश काल है ना, जो इसकी अपेक्षा करता है, और शायद आज यह बहुत अधिक प्रासंगिक है। तो इन प्रश्नों को, कोई बड़ी कृति इसलिए बड़ी कृति नहीं थी कि वो हमें उपदेश करती है, ठीक है, वो उसका एक अवान्तर पक्ष है। बड़ी कृति इसलिए भी है कि हमें ऐसे संदर्भों से या ऐसे संदर्भों में स्थापित कर देती है जिन पर हम पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होते हैं। हमें यह नहीं समझना है कि सबका उत्तर रामायण में मिल जाता है। प्रश्न, रामायण की महत्ता उन प्रश्नों के कारण भी है, जो प्रश्न हम निरंतर जिनका उत्तर ढूंढते रहते हैं, जो प्रश्न शायद अनुत्तरित हैं या एक से अधिक उसके उत्तर हो सकते हैं, और यही एक जागृत संस्कृति समुदाय में यही अपेक्षित भी है कि उसकी पुनर्व्याख्या हो। उन प्रश्नों का हम अपने अपने देश काल में एक समाधान ढूंढने की निरंतर चेष्टा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, नमस्कार। Thank you, sir, for the insightful session. Now we will open the floor for any questions. प्रश्न इनसे करना है आप। मैं प्रश्न नहीं कर रहा, मैं एक, इन्होंने जो अहिल्या पर बहुत सुंदर बात कही, उसकी पुष्टि और समर्थन में ही एक बात और वाल्मीकि में लिखी है कि गौतम कहीं दूर नहीं गए थे। जैसे ही राम उनके आश्रम में आए और वो उसका शाप मोचन हो गया, तो तत्काल अहिल्या और गौतम दोनों ने राम की उपासना की। तो अगर गौतम दूर जाते तो वो वहीं थे। ये उसके समर्थन में एक आगे है। तो अगला ही श्लोक ये है। हाँ है, वो सब हाँ, समय का है ना, सब राम के बहुत कुछ बताना है। और पदवंदन राम जी ने किया। हाँ, पदवंदन उसने, अहिल्या ने किया। दोनों ने किया। नहीं राम ने। नहीं। इसके मतलब ये अभी गौरी तई और अच्छा प्रकाश डाल सकती है। समर्थ रामदास जी का जो पद है, ये अहिल्या शिया राघवे मुक्त केली, त्याच्यामध्ये जो जहाँ जो पदी शब्द आता है, उसके महाराष्ट्र के वैचारिक जगत में दो अर्थ निकाले जाते हैं। अच्छा। अहिल्या का पद, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दोनों ने, गौतम और अहिल्या दोनों ने राम। पहला वंदन राम जी ने किया। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष मुझे लगता है। राम जी का वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख नहीं है। वो बाद में फिर हो सकता है ना, जैसे क्या है अभी संस्कृत भाषा है, उसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं एक शब्द में, कैसा भी आप मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा प्रसिद्ध उदाहरण वेदों का ये है कि इंद्र शत्रु जैसा बच्चा होना इंद्र चाहिए। शत्रु विवर्धस्व। हाँ, तो अहल्या के बारे में एक मैं उनका जो पक्ष था कि उनको ब्राह्मण मात्र है वेदों का, तो इसके लिए मैं कुछ बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे वेदों में आता है अहल्याया जा रहा इंद्र के लिए, और वही बात रामायण में बाद में आती है अहल्याया जा रहा करके। तो उधर अहल्या इस शब्द का निर्वचन मीमांसकों ने भी जो दिया है वो थोड़ा देखने लायक है। अ इज अ नेगेटिव पार्टिकल, हल मतलब प्लाउशेयर, हल्य इज अ थिंग which can be plowed, which can be tilled. So Ahalya is untillable land. It's a barren land. Ahalya is an untillable barren land, and Indra being the deity of the Parjanya, one who governs the Parjanya. So Ahalyaya Jara is the fructifying that barren land.
So if that sense, if it is, that is one nirvachana, and therefore the Vedic sentences have to be interpreted in the light of etymology. So that is one nirvachana, and the other one is done by Kumarila Bhatta, the Mimamsaka, and that is Ahan and Li. These are the two segments. Anhi liyate ya. So Ahalya nama ratrihi. तस्याहा जारहा नाम सूर्यः. सूर्य तिची वस्त्र फेडतो त्याच्या किरणांनी, म्हणजे रात्र संपते आणि नक्षत्रकाल बघतो. त्यामुळे ही जी अशी विशेषण आहेत ना, कुठचंही बघताना आपण जार, त्या जारला एक यार असं यज लिंग्विस्टिकली, मग त्याला थोडं डिरॉगेटरी मिनिंग येऊन जातो. तर त्याचं जर फिनॉमिनल डिस्क्रिप्शन आपण पाहिलं, फिनॉमिनल इंटरप्रिटेशन पाहिलं, तर मला वाटतं इट इज very very enlightening. And this is what I mean by इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संपद्ये विभेद कल्पश्रुतात् वेदो मामयम् प्रविश्य. Do we have any more questions from the audience? Not a question as such. This is the continuation of the Ahalya story. Vishwamitra could relate with Ahalya more, according to me. The Jeshthas could please guide, because Vishwamitrah पूर्वम् एवमेव दोषम् आचरितवान् आसीत्, यथा मेनकायाः विषये. अनन्तरं सः तत् किं वदामः, कामं सम्पूर्णतया त्यक्त्वा अग्रे गतवान्. एवमेव यदि सः अग्रे गन्तुं शक्नोति तर्हि अहल्या अपि गन्तुं शक्नोति इति उत्तमं कञ्चित् अंशं वयम् अत्र पठितुं शक्नुमः इति एकम्. अपि च एवम् तयापि उक्तम्, अहल्या पतिता एव आसीत्, तया ज्ञातः अयम् इन्द्रः इति. तद् ज्ञात्वा अपि सा दुश्चरितम् आचरितवती. So when we call Patita Pavana Ram or Ahalyodharaka Ram, so this is mainstreaming of the Patita. And a king, he was a king, a sovereign king, a Bodhvik sovereign king. And for a king it is very very necessary that there could be some such Patitas, but mainstreaming them and not त्यांना वाईट टाकणं आणि outcast करणं, that is not a solution. So this is like his leadership quality more dangerous also. for society. That's more dangerous for society. yeah, that's more dangerous for society. आणि आता आपण ह्या जमान्यात 21व्या शतकात पाहतो की एखाद्या स्त्रीने काही तिच्या चुकीमुळे काही तिचं झालेलं आहे किंवा कोणी विनयभंग केलाय, शी इज आउटकास्ट होते की तिच्या पेरेंट्सना पण तोंड दाखवायला जागा राहत नाही समाजामध्ये. हे किती वाईट आहे. त्या बॅकग्राऊंडवर आपण रामायणातनं काय शिकायला पाहिजे, तर ह्या गोष्टी शिकायला पाहिजेत असं मला वाटतं. की आणि गौतम धर्मस्मृति में भी इस पर बहुत प्रकाश डाला गया है कि स्त्री के पातित्य के ऊपर. पतिता स्त्री को शुद्ध करने का अधिकार आणि प्रायश्चित्ताचं आहेत ना आपलं आचार व्यवहार, स्पेशली इस पर एक प्रकरण है, स्त्री धर्मशास्त्र पातित्य आहे. पर एक प्रकरण प्रायश्चित्त घेतलं की सगळे प्युरिफाय होतात, सगळ्यांना काही कायम दंड नाही इतनी द्यावा लिबरल लागत. है वो स्मृति कि हम आज भी नहीं उसका हम भी नहीं फॉलो कर सकते. आज हम बोल रहे कैन बी इंटरप्रेट इन अदर वर्ड की यूनिशुचिता इस कंसेप्ट को ही राम ने चैलेंज किया. यानी राम हैज चैलेंज्ड इट बाय दिस पर्टिकुलर डीड. राम हैज चैलेंज्ड दैट. मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा क्रांतिकारी राम का कदम है यदि उस काल परिस्थिति के पैरेलल में उसको देखें. और ये कोइंसिडेंस देखिए ना, गौतम धर्मस्मृति में ही इस पर स्त्री पातित्य पर पूरा एक प्रकरण और उस पर पूरा वो जो रेप है या फिर पतिता है आणि पतितेला पण पुनर्विवाहाचा अधिकार आहे. विधवा है, पतिता विधवा परित्यक्ता प्रव्रजिता, है, सभी त्यक्ता, स्त्रियों का विचार उसमें किया मृतक, गया है और उसका नाम गौतम धर्मस्मृति है. ये भी एक सोचने वाली बात है. एक स्मृति में यही तर्क दिया गया है कि प्रतिमास रजस्राव के बाद वह स्वतः शुद्ध हो जाती है, इसलिए उसको कोई अन्य प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है. तो द्रौपदी का वही है. हाँ. But she married 5 of और them. इसके लिए एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है, वैज्ञानिक का ग्रंथ है. भास्कराचार्य ने जो अपना ग्रंथ लिखा वो
नहीं ब्रह्म सिद्धांत श्लोक। इसका ब्रह्मसूत्र सिद्धांत। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है 6ठी शताब्दी का, मैं वो श्लोक मैं बता दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है। और उन्होंने स्त्री प्रशंसाध्याय लिखा है, स्त्री प्रशंसाध्याय 5वीं शताब्दी में उन्होंने जो लिखा, उसमें स्त्री प्रशंसाध्याय में स्त्री की प्रशंसा में ये सारी बातें लिखी है। मैं कल वो संदर्भ बताऊंगा। एक प्रश्न, इतना होने पर अहल्या स्खलित होने पर भी फिर वो इस 5 कन्याओं में पहली क्यों मानी गई? पतिव्रता में राम ने शुद्धिकरण करने के बाद ये नहीं, अभी पहले उसके बाद फिर से उसमें आप वो पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए। उसमें आगे लिखा है कि बाद में फिर से अहिल्या और गौतम जी ने मिलकर तपस्या की। और तपस्या उसके शुद्ध हो बाद गई। वो पतिव्रताओं में अग्रगणी पहला नाम अहिल्या का। उसने तपस्या के बाद ये हो गया। दोनों ने तपश्चर्या की। अनुताप के बाद सभी शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन वही अपराध रिपीट नहीं करना चाहिए। मैडम मैं पूरे सभागृह के तरफ से भावे सर को एक विनती करता हूँ कि प्राचीन भारतीय चिंतन का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, इस विषय पर आप मेरे साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं होगा, कि जो पंचकन्या को हम मानते हैं, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, द्रौपदी तथा पांचों के जीवन में पढ़ने के बाद ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। तारा के जीवन को उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु प्रश्न ये जरूर आ सकता है जो आपने उपस्थित किया कि फिर इनको पंच स्त्रियों में स्थान क्यों दिया। तो इसका सेमिनार होना चाहिए, हमें भी बुला स्त्री स्वातंत्र जो कहा है उसका गुलाम बने ऐसा अर्थ नहीं है। वो श्लोक मिल गया। उसका रक्षण करते हैं, पुत्र करते हैं, पति करते हैं, बाद में पुत्र करते हैं, रक्षण ही है। ये बहुत मूल्यवान है। इसके काम स्वातंत्र अगर रास्ते पर छोड़ नहीं देना चाहिए, रखना चाहिए। I thank Professor Rajneesh Mishra sir and Dr. Aparna Patil ma'am for your enlightening, informative and insightful session. Thank you once again. Thank you everyone. It was a really discussion full of session and we got to hear a lot, and it's always good when you have a post discussion which is such fruitful than the speaking which is happening, and that is what incites the discussion that follows. So thank you for your wonderful talks and enlightening talks.